Good morning, dear student. Today we shall learn coordinate geometry. Coordinate geometry जो है उसमें हम we learn how to describe the position of a point in a plane. कि हमारा एक प्लेन है उसमें किसी पॉइंट की पोजीशन जो है वो कैसे बता सकते हैं। तो हम देखेंगे कि we need two information finding the position of a point on a plane। जैसे its board is a plane, इस प्लेन में position of a point then a point is a point position of a plane a की पोजीशन शो करने के लिए हमें टू इंफॉर्मेशन की नीड है। इंफॉर्मेशन की नीड है। एग्जाम्पल ए हॉरिजेंटल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। ए पॉइंट ए इज perpendicular distance from a horizontal line is let 5 centimeter and vertical line point A is distance 10 centimeter. Point A horizontal line to perpendicular distance 5 centimeter to 5 centimeter पर point अनेक पॉइंट हो सकते हैं, बट वर्टिकली लाइन टू 10 सेंटीमीटर ओनली पॉइंट ए। यानी पोजीशन ऑफ ए पॉइंट हमें शो करने के लिए दो वैल्यू चाहिए। पहली एक 5 और एक 10 की हॉरिजॉन्टल लाइन टू 5 सेंटीमीटर एंड वर्टिकल लाइन टू 10 सेंटीमीटर पॉइंट ए। इसी तरह हम ड्रॉ ए प्लान of sitting in the classroom column row, first column, second column, third column, 4, 5 and row, first row, second row, third row, fourth row, 5 row. First column, each student position of each students find the position, then two information need first column and second row. जैसे by example one student sit here, रमेश। तो पोजीशन ऑफ रमेश कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो थर्ड कॉलम में रमेश की सिटिंग है थर्ड कॉलम में, लेकिन थर्ड कॉलम के अंदर तो हम देखेंगे कि थर्ड कॉलम के अंदर वो फर्स्ट रो में भी हो सकता है, सेकंड रो में भी हो सकता है, थर्ड, फोर्थ एंड फाइव, है ना। तो फर्स्ट रो के अंदर भी एक स्टूडेंट है, सेकंड में एक स्टूडेंट, थर्ड रो में एक स्टूडेंट, वन स्टूडेंट, फोर्थ रो में वन स्टूडेंट, फिफ्थ रो में वन स्टूडेंट। लेकिन पोजीशन ऑफ रमेश इज थर्ड रो। यानी कि पोजीशन ऑफ ए स्टूडेंट, पोजीशन ऑफ ए सिटिंग ऑफ रमेश थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो। यानी कि टू इंफॉर्मेशन, वी नीड टू इंफॉर्मेशन टू position of a point, position of a student, each student's position need to information. Then one student sit here. तो स्टूडेंट्स आर की जो हमें पोजीशन बताने के लिए हमें टू इंफॉर्मेशन की नीड चाहिए। फर्स्ट की कॉलम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉलम। अब फोर्थ कॉलम में
स्टूडेंट्स जो है वो 1 रो में है, 2 में है, 3rd में है, 4th में है, 4th में 5th में है, तो 1 2 3 4 4th रो में, यानी कि रमेश की जो पोजीशन ऑफ ए सिटिंग जो है वो पॉइंट जो है वो इसका जो सिटिंग प्लान बताने के लिए मैं 2 इंफॉर्मेशन की नीड चाहिए। पहला फर्स्ट हमें कौन सा कॉलम 4th एंड सेकंड रो भी 4th। तो हम इस प्रकार we need 2 information to position of a point in the plan। इसी पोजीशन ऑफ द पॉइंट शो करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। कार्टेशियन सिस्टम में टू लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन ए प्लेन। जैसे एक प्लेन है, उस प्लेन के अंदर टू लाइन is perpendicular to each other in a plane, यानी एक प्लेन में 2 लाइन एक दूसरे को perpendicular इंटरसेक्ट करती है। horizontal line is called x axis। horizontal line is called x axis and vertical line is called y axis। horizontal line is called x axis, vertical line is called y axis, and horizontal line is denoted by x dash and y dash। The point where x axis and y axis cross is called origin point। origin point is denoted by O, and O right side positive number, left side negative number, origin point to upper positive number, lower negative number। We have already studied number line in class 10th 7th। center 0, right side positive 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 0 1 2 3 4 -1 -1 -2। then x axis is a number line and y axis is a number line। then 0 origin point to positive side, right side positive number 1 2 3 4 5, and left side negative number -1 -2 -3 -4 -5 -6, and upper 1 2 positive number 3 4 5, and lower -1 -2 -3 -4 -5। x axis and the point where x axis and y axis cross is called origin point and denoted by O। origin point to right side positive number, origin point to negative side left side negative number, origin point to upper positive and lower negative number। x axis and y axis and x axis and y axis horizontal line is called x axis, vertical line is called y axis। x axis and y axis divide the plane, x axis and y axis divide the plane into 4 parts, four parts is called quadrant, 4 parts is called
4 parts is called quadrant. Quadrant means 1/4 part, 1/4 part. तो x axis and y axis divide the plane into 4 parts, और 4 parts numbered anti-clockwise, number anti-clock and anti-clock. तो anti-clockwise number first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, and x axis and y axis. First, second, third, fourth. First quadrant, position of the point, first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, need two information, and point coordinate of the point जो है हम ब्रैकेट x एक्सिस एंड y एक्सिस की पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को हम ब्रैकेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट x एंड सेकंड कोऑर्डिनेट y, तो x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट यानी इस प्लेन पर किसी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होगी, फर्स्ट x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को हम इस प्रकार फर्स्ट x कोऑर्डिनेट एंड सेकंड y कोऑर्डिनेट, फर्स्ट x कोऑर्डिनेट एंड सेकंड y कोऑर्डिनेट, देन फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव, देन क्वाड्रेंट कोई भी पॉइंट जो पोजीशन ऑफ द पॉइंट या क्वाड्रेंट या x एक्सिस ऑन y एक्सिस, एंड किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को हम x एंड y से डिनोटेड करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट x, सेकंड क्वाड्रेंट y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट is called abscissa and y coordinate is called ordinate. X coordinate is called abscissa and y coordinate is called ordinate. X axis, y axis, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट नेगेटिव एंड सेकंड x कोऑर्डिनेट नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, देन पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड x कोऑर्डिनेट नेगेटिव y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, देन पोजीशन ऑफ द पॉइंट वेयर x coordinate negative, y coordinate negative is third quadrant, fourth x coordinate positive, y coordinate negative, then position of the point यानी पॉइंट की जो स्थिति होगी वो पॉइंट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित होगा। तो इस प्रकार दिस प्लेन वी कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन, XY प्लेन। इसी तरह हम इस कार्टेशियन सिस्टम पर इस क्वाड्रेंट पर किसी भी पोजीशन ऑफ द पॉइंट एंड किस प्रकार किसी भी पॉइंट की पोजीशन जो है वो हम इस कार्टेशियन सिस्टम से बता सकते हैं, उसके लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हम देखेंगे
इक्वेशन सी फिगर and see figure and write the following. X-axis, x dash, y dash, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, 2, minus 5. देखिए हमारा एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। इस प्रकार का हमें प्लेन कार्टेशियन सिस्टम कार्टेशियन प्लेन हमें दे रखा है और उस पॉइंट के अंदर विभिन्न पॉइंट ऑफ की पोजीशंस हमें बतानी है, जैसे पॉइंट बी, पॉइंट डी, पॉइंट एल, पॉइंट एम, पॉइंट एच, पॉइंट ई, पॉइंट जी, पॉइंट सी हमें गिवन है। और हमसे एक क्वेश्चन पूछा है पहला कि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, the coordinate of B, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ B बताने के लिए इस कार्टेशियन प्लेन में हमें पोजीशन ऑफ द पॉइंट बताने के लिए हमें टू इंफॉर्मेशन की नीड होती है। और यहाँ हमें पूछा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम इस प्रकार ब्रैकेट में लिखते हैं, फर्स्ट x कोऑर्डिनेट, सेकंड y कोऑर्डिनेट। यहाँ पॉइंट B, इस B के कोऑर्डिनेट बताने के लिए इस B कोऑर्डिनेट का पहले हम x एक्सिस पे इस B कोऑर्डिनेट का x, अब किसी भी कोऑर्डिनेट की B कोऑर्डिनेट का पहला x कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो x कोऑर्डिनेट होता है कि इस पॉइंट की x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम x एक्सिस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ b की हमको हमें पूछा है कि दी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b, तो b के कोऑर्डिनेट पहला x कोऑर्डिनेट देखना है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा कि -5
एंड बी कोऑर्डिनेट का वाई एक्सिस पे वैल्यू क्या है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट हो जाएंगे हमारे पास में -5 एंड 2। दूसरा इसी तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा दी कोऑर्डिनेट ऑफ सी, दूसरा दी कोऑर्डिनेट ऑफ सी के कोऑर्डिनेट पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो पॉइंट सी का पहला एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट की एक्स अक्ष पर इस पॉइंट से हमें एक्स अक्ष पर 5 एंड पॉइंट सी की y एक्सिस पे वैल्यू -5, तो पहला x कोऑर्डिनेट 5 एंड y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे वैल्यू देख लीजिए इसकी -5। तो किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जो होगा वो पहला फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर पहली जो वैल्यू होती है वो x कोऑर्डिनेट, सेकंड जो वैल्यू होती है वो y कोऑर्डिनेट, फर्स्ट जो है वो x की वैल्यू, सेकंड जो है वो y की वैल्यू। एंड x एक्सिस जो है उस पे इस पॉइंट की x एक्सिस पे वैल्यू, तो इस पॉइंट की x एक्सिस पे इस पे जो वैल्यू होगी वो 5, c की इस पे जो होगी वो -5। तो इस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट c हो जाएगा 5 और -5। इसी तरह का हमसे एक और प्रश्न पूछा कि दी पॉइंट आइडेंटिफाई बाय दी पॉइंट आइडेंटिफाई the point identified by the coordinate हमें गिवन है, कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -3 एंड -5। तो -3 और -5 के कोऑर्डिनेट जो है दी पॉइंट आइडेंटिफाई, यानी हमें पॉइंट की आइडेंटिफाई करना है कि जिसके कोऑर्डिनेट -3 एंड -5। तो -3 और -5, x कोऑर्डिनेट -3, तो x एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट -3 एंड y कोऑर्डिनेट -5, तो x एक्सिस पे -3 एंड y एक्सिस पे -5। सिर्फ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपस में एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेगी, -3 एंड -5 दोनों जो है वो e है, तो -3 और -5। पहले हमेशा x कोऑर्डिनेट देखा जाता है, x एक्सिस पे इधर नेगेटिव नंबर -3 एंड y एक्सिस पे -5, y एक्सिस पे -5 नीचे की तरफ, तो -5 दोनों -3 से और -5 से दोनों जो परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट जो है E, यानी कि द पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट ऑफ 3। तो लिखेंगे कि कोऑर्डिनेट पॉइंट जो होगा वो होगा पॉइंट E पॉइंट जो है जिसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होंगे x -3 y -5। इसी प्रकार का हम एक और प्रश्न देखें कि दी पॉइंट आइडेंटिफाई फोर्थ दी पॉइंट आइडेंटिफाई बाय कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 2 एंड -4, 2 -4, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट -4, x कोऑर्डिनेट 2, तो x एक्सिस पे 2 एंड y एक्सिस कोऑर्डिनेट -4, तो -4, तो 2 और -4 दोनों लाइंस जहां एक दूसरे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट G। तो दी पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट हो जाएगा G। देन इसी तरह का हमसे एक और क्वेश्चन पूछा दी abscissa of the point
डी। एब्सिस का यानी कि एक्स एक्सिस, एब्सिस का जो है वो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा जिसको हम एब्सिस का कहते हैं, तो इस पॉइंट डी, इस पॉइंट के डी के कोऑर्डिनेट हम देखें तो इसका एक्स पे इसकी एक्स कोऑर्डिनेट 6 एंड वाई कोऑर्डिनेट 2, और हमसे पूछा है कि द एब्सिस का ऑफ द पॉइंट, तो एब्सिस ऑफ द पॉइंट डी होगा, तो वो जो है एब्सिस का यानी कि एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू है पॉइंट डी की 6, तो एब्सिस का ऑफ द पॉइंट डी इज 6 एंड इसी तरह द ऑर्डिनेट ऑफ the ordinate of the point H, ordinate x axis is called abscissa and y axis is called ordinate, तो y axis is called ordinate यानी H point, इसका कोऑर्डिनेट हम लिखें तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5 एंड y कोऑर्डिनेट 3। तो हमसे यहाँ पूछा है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H यानी कि हमें y कोऑर्डिनेट बताना है, तो y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट H का y कोऑर्डिनेट होगा 3। इसी तरह हमसे पूछा कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट the coordinate of the point L and next the coordinate of the point M, coordinate of the point L and coordinate of the point M, the coordinate of the point on coordinate of the point on x axis, the coordinate of the point on x axis and the coordinate of the point on y axis, then the coordinate of the point on x axis when coordinate x and y coordinate 0, where the coordinate of the point on x axis, the coordinate of the point on x axis, then x coordinate तो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन y coordinate is 0, then and the coordinate of the point on y axis, then x coordinate is 0 and y coordinate हम फाइंड कर सकते हैं। then हमसे पूछा the coordinate of the point L, the coordinate of the point L, the coordinate of the point L, तो point L, तो L point L on x axis, point L on x, point L on y axis, point L on y axis, then coordinate of the point L on y axis, then x coordinate 0 and y coordinate 5. M, coordinate of the point M on x axis, तो x axis पे वैल्यू -3 and y coordinate 0, point on x axis then y coordinate 0, point on y axis x coordinate 0. तो the coordinate of the point L on y axis x coordinate 0, point the coordinate of the point M point on x axis then y coordinate 0, तो the coordinate of the point L, first coordinate 0 and second y coordinate f, and coordinate of the point M x -3, y coordinate 0, तो कार्टेशियन प्लान में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं, और उसके बाद हमें इस प्रकार
किसी भी पॉइंट की पोजीशन से संबंधित हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हो या हमें कोऑर्डिनेट गिवन हो, उस कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन प्लान पे पॉइंट ऑफ पोजीशन ऑफ पॉइंट हमें फाइंड करनी हो, तो हम इस कार्टेशियन सहायता से और इन कोऑर्डिनेटों की सहायता से पोजीशन ऑफ द पॉइंट इस कार्टेशियन प्लेन पे शो कर सकते हैं। और कल की क्लास में हम कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इसी तरह का कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करना या किसी कार्टेशियन प्लेन पे कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखना, उसके बारे में और कल स्टडी करेंगे। धन्यवाद।